ఏది అయినా ట్రై చెయ్యి ఆచి చికెన్ మసాలా. ఆచి చికెన్ మసాలా. ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు బీజేపీ ప్రభుత్వం ఏదైతే డీలిమిటేషన్ మహిళా బిల్లు తీసుకురావడం జరిగిందో దీని మీద అనేక అవకతవకలు, దేశ ప్రజలకు అన్యాయం జరిగే ఒక విధంగా ఒక రాజకీయ కుట్ర జరుగుతున్నది అని కాంగ్రెస్ నాయకుడు, మా నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ గారు, ప్రతిపక్ష నాయకుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ రాహుల్ గాంధీ గారు పార్లమెంట్లో గత కొన్ని రోజులుగా దేశ ప్రజలకు అందరూ కూడా మేల్కొనండి, బీజేపీ ప్రభుత్వము దేశ ప్రజల యొక్క మీ హక్కులను వాళ్ళు అంచెలంచెలుగా కొన్ని విధి విధానాలను తీసుకొచ్చి వాళ్ళు సొంతం చేసుకునే కుట్ర జరుగుతున్నది. అంబేద్కర్ రాజ్యాంగం ఏ స్వేచ్ఛ, ఏ హక్కు అయితే దేశ ప్రజలకు జవహర్లాల్ నెహ్రూ, ప్రధాని జవహర్లాల్ నెహ్రూ వారి నాయకత్వంలో, ఆ రోజు కాంగ్రెస్ నాయకత్వంలో బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు ఒక రాజ్యాంగాన్ని దేశ ప్రజల ఓటు హక్కు, దేశ ప్రజల స్వేచ్ఛా జీవితము, దేశ ప్రజల వాళ్ళ స్వతంత్రంగా జీవించే హక్కులు, ఇలా రాజ్యాంగ పద్ధతిలో జీవించే హక్కులు, అనేక సవరణలతో కూడుకున్న ఒక రాజ్యాంగాన్ని దాదాపు ఈ 70 మన స్వతంత్రం వచ్చి 75 సంవత్సరాలు, ఈ 75 సంవత్సరాల సుదీర్ఘమైన ప్రయాణంలో ఈరోజు దేశంలో ప్రతి మానవుడు, ప్రతి మనిషి స్వేచ్ఛగా, ఆనందంగా, సుఖశాంతులతో, చట్టపరిధిలో, న్యాయ పరిధిలో స్వేచ్ఛా జీవితం గడుపుతున్న ఆనాటి ప్రధాని జవహర్లాల్ నెహ్రూ నాయకత్వంలో, కాంగ్రెస్ నాయకత్వంలో అంబేద్కర్ తీసుకొచ్చిన ఈ రాజ్యాంగంలోనే జీవిస్తున్నాం. అలాంటి ఈ యొక్క జీవితంలో అంచెలంచెలుగా బీజేపీ పార్టీ, మోడీ గారు, వాళ్ళ ప్రభుత్వం, బీజేపీ ప్రభుత్వం ఆ ప్రజల స్వేచ్ఛ జీవితాన్ని, వాళ్ళ హక్కులను అంచెలంచెలుగా దేశ ప్రజలకు తెలియకుండానే వాళ్ళు కైవసం చేసుకునే ఒక కుట్ర జరుగుతున్నది. దీని విషయంలో మరి ఈ మధ్యకాలంలో మనం అందరం చూస్తున్నాము. మరి ఈ డీలిమిటేషన్ మహిళా బిల్లు, నిజంగా మహిళా బిల్లు సోనియా గాంధీ గారు గత యూపీఏ గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడే ఒక కార్యాచరణ, ఒక కార్యక్రమము ఈ దేశంలో మహిళలకు మరి బిల్లు పెట్టాలి, చట్టసభలో వాళ్ళకు ఒక హక్కు కలిగించాలని ఆనాడు మరి సోనియా గాంధీ గారు మరి ఈ మహిళా బిల్లు ముందుకు తీసుకురావడం జరిగింది. కానీ నిన్న ఈరోజు మన పార్లమెంట్లో చూస్తున్నాము. ఈరోజు రాహుల్ గాంధీ గారు కూడా చెప్పారు, మహిళా బిల్లు కాంగ్రెసే తీసుకొచ్చింది, సోనియా గాంధీ గారు తీసుకొచ్చారు, కాంగ్రెస్ పార్టీ తీసుకొచ్చింది, కానీ లోపాలతో కూడుకున్న బిల్లును ప్రవేశపెట్టారు అని. మహిళా బిల్లులు అనేక లోపాలు ఉన్నాయి. పద్ధతి ప్రకారం బిల్లును ప్రవేశపెడతలేరు. ఒక కుట్రపూరితమైన, రాజకీయ కుట్రపూరితమైన ఒక ఆలోచనతో మరి ఈ మహిళా బిల్లు ఉన్నది అని రాహుల్ గాంధీ గారు, ఇందులో అనుమానాలు ఉన్నాయి, సవరణలు చేయాల్సిన అవసరం ఉన్నది, ఈ బిల్లు మీద అనేక అనుమానాలు ఉన్నాయని కూడా పార్లమెంట్లో ప్రతిపక్ష నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ గారు ఈరోజు కూడా మాట్లాడడం జరిగింది. మనం మొన్న కూడా చూసినాం కంటిన్యూగా हिस्सा चोरी अटे जो भी आज पार्लियामेंट में चल रहा है, राहुल जी और राहुल गांधी जी जो हमारे नेता राहुल गांधी जी इस देश की जनता के लिए, इस देश में जो बीजेपी जो गवर्नमेंट है वो लोगों का क्या वो लोग ये जनता की जो भी स्वतंत्र है, जो भी इंडिपेंडेंस है, वो इंडिपेंडेंस छीनने का एक प्लानिंग से लोग चल रहे हैं लोग। देखो बी.आर. अम्बेडकर जब जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस गवर्नमेंट जब थे इंडिपेंडेंस के बाद, जब बी.आर. अम्बेडकर जो आर्टिकल आए हैं वो आर्टिकल में ये देश की जनता आराम से
सुकून से वो लोग जिंदगी गुजारने का ऐसा आर्टिकल लाए हैं। मगर आज क्या हो रहा अपन देख रहे हैं, ये बीजेपी हल्लू 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 बी आर अम्बेडकर जी जो आर्टिकल को हटाने का कोशिश, वो आर्टिकल निकालने का कोशिश चल रहा है। इसलिए ये डीलिमिटेशन जो चल रहा है, इसलिए राहुल जी बोले जो ये डीलिमिटेशन में जो बीजेपी गवर्नमेंट एक पब्लिक का जो हक है, वो हक को छीनने के लिए जो देश की जनता हक है, जो ये देश की जनता इंडिपेंडेंट जीने का लाइफ है, ये देश की जनता इंडिपेंडेंट सोचने का वो लोगों को हक है। जो भी देश की जनता का जो भी राइट्स है, वो लोग हक छीनने का एक डिजाइन पे बीजेपी गवर्नमेंट काम कर रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी जी बोले भाई ये बीजेपी गवर्नमेंट ये लोग यो महिला बिल्लू, महिला जो आज में भी राहुल जी बोले हैं भाई, जो जब सोनिया जी महिला बिल्लू लाने का कोशिश किए हैं, मगर आज का जो पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री मोदी जी जो गवर्नमेंट पार्लियामेंट में जो महिला बिल पास कर चर्चा के लिए रखे हैं, उसमें बहुत गलतियां हैं। वो गलतियां को सुधारने के लिए वो गलतियां को चेक करना पड़ता। इसमें हमारा देश की जनता के तरफ से महिला बिल जो पास करने का चर्चा चल रहा है, उसमें हमको डाउट्स है। वो डाउट पूरा क्लियर करके आप लोग महिला बिल लाने का कोशिश करके बोलते। पहले से सोनिया गांधी जी जो महिला बिल लाने का कोशिश पहले से चल रहा है, वो सोनिया गांधी जी कर रहे थे। ये यूपीए गवर्नमेंट से चल रहा है ये तो पूरा। भाई जो भी ये महिला बिल में जो भी आज राहुल गांधी पार्लियामेंट में बोले, वो जो भी राहुल जी बोले महिला बिल में डाउट्स भी जो भी पूछे हैं, वो डाउट्स पूरा देश की जनता क्लियर करके बिल पास करना बोल के राहुल जी का डिमांड है। साथ में साथ ये हिस्सा चोरी, जो हिस्सा अपन का हक है, वो हक चोरी करने के लिए बीजेपी गवर्नमेंट प्लान कर रही है। ये लोगों का यही है, आने वाले इलेक्शन में ये देश की जनता वोट बैंक वो लोगों को कंट्रोल में रख लेने का, जो ये सीटा बढ़ाने का जो कोशिश चल रहा है, ये सीट बढ़ाने के बाद वो फिर फोर्थ टाइम भी बीजेपी आने के लिए कुछ वो लोग इलेक्शन कमीशन को वो लोग कंट्रोल में लेके ये लोग ये हिस्सा चोरी जो राहुल जी बोल रहे हैं, अभी ये डीलिमिटेशन का ये पार्लियामेंट में रखे, इसके लिए चर्चा रखे, इसको बिल पास करने की कोशिश करे। जनता भी सोचना है, राहुल जी जो भी पार्लियामेंट में जो भी शब्द बोल रहे हैं, जो भी आवाज उठा रहे हैं, वो देश के तरफ से आवाज उठा रहे हैं, देश की जनता के तरफ से आवाज उठा रहे। ये जनता भी सोचना है, देखो तुम्हारा जो भी हक है, वो हक छीनने का कोशिश बीजेपी गवर्नमेंट स्टार्ट की है। अगर एक बार देश की जनता के हक को अगर हासिल कर लिए बीजेपी गवर्नमेंट, अभी कोई कुछ नहीं कर सकती। इसलिए राहुल गांधी जी बात में पार्लियामेंट हर एक बात में भी भाई जनता होशियार हो जाओ, आपका जो हक चोरी हो रहा, आपका जो हिस्सा है वो चोरी हो रहा, ये बीजेपी पार्लियामेंट में ऑफिशियली काम कर रहे लोग। इसके लिए देश की जनता होशियार हो जाओ। आप लोग जो राहुल जी बात में सोचो, जो राहुल जी जो पार्लियामेंट में आपके लिए कुछ आवाज उठा के कुछ बात कर रहे हैं, वो भी सोचो। फ्यूचर में आपको तकलीफ नहीं आना, देश की जनता को तकलीफ नहीं आना, या तेलंगाना रहो या आंध्र प्रदेश रहो, यहाँ से लेके तेलंगाना आंध्र प्रदेश से लेके जो भी जनता ये बीजेपी का जो डिलिमिटेशन का जो महिला बिल का, वो लोगों को पॉलिटिकली वो लोगों का हाथ में रहना, पब्लिक का हाथ में नहीं रहना। जो भी है वो लोगों को हाथ में रहना, वो लोग हाथ में मशीन रख लिया। वो लोग आपका हाथ में अंगूठा है दबाने का, मगर आपका हाथ में जो अंगूठे से आप लोग दबा के देश को अच्छे लोगों को आप चुनाव में चुनाने के लिए मौका है वो। मगर अगर आप अच्छे आदमी को दबाए तो भी वो बीजेपी को वोट जा रहा, वैसा डिजाइन में लोग बीजेपी गवर्नमेंट काम कर रहे हैं। यही है
प्रधानमंत्री बीजेपी का सोचना, यही सोच रहा है। पब्लिक को पता नहीं रहना, पब्लिक को इंफॉर्मेशन नहीं रहना, इसलिए राहुल गांधी जी हर एक, अभी देखो राहुल गांधी जी डेली पार्लियामेंट में देश की जनता की होशियार कर, आप लोग होशियार हो जाओ, ये बीजेपी क्या क्या चाल चल रहा है, आपका हिस्सा चोरी करने का जो भी वो लोग काम कर रहे हैं पब्लिक का, उसके लिए खुद जनता भी आंखा खोल के सोच के आपका आवाज भी राहुल जी के साथ चलना है। उनके आवाज, राहुल जी के आवाज में आप आवाज मिलाओ, देश की जनता आवाज, आपका आवाज देश की जनता राहुल जी आवाज को जुड़ाओ, जब भी प्रधानमंत्री मोदी नीचे उतरेगा, जब भी नीचे आएगा, देश की जनता के लिए, देश की जनता को जब भी डरेगा उन्हें, नहीं तो आने वाले दिनों में जो राहुल जी देश की जनता के लिए ये हिस्सा चोरी, हिस्सा आपका हक, देश का जनता हक जो चोरी हो रहा है, उसको राहुल जी जो लड़ रहे हैं पार्लियामेंट, उसके साथ देने के लिए देश की जनता होशियार हो जाओ, आप लोग साथ दो। अभी ये महिला बिल में भी लेडीज के लिए जो जो बिल लाने जो चल रहा है, वो उसमें करप्शन, उसमें कुछ डाउट्स है, वो जनता की डाउट्स को राहुल जी पार्लियामेंट में पूछे हैं, इसको भी अलर्ट कर। इसलिए हम तेलंगाना में संगारेड्डी हेडक्वार्टर, हमारा इंदिरा गांधी जी यही संगारेड्डी में, यहाँ से ही एमपी को, यहाँ से एमपी ठहरे हुए यहीं नामिनेशन डाले। हमारा यही संगारेड्डी कमांड, यहाँ मेदक पार्लियामेंट बोलते हैं, यही संगारेड्डी हेडक्वार्टर में इंदिरा गांधी जी एमपी के लिए नामिनेशन डाले हैं। यही संगारेड्डी यहीं एमपी रह के प्रधानमंत्री भी थे, देश का प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थे। वही संगारेड्डी में आज हम राहुल जी जो आवाज उठा रहे हैं पार्लियामेंट में, उनके बाद में उनको आवाज पे हम साथ देने के लिए हम तेलंगाना कांग्रेस पार्टी यही संगारेड्डी, जो इंदिरा जी का हेडक्वार्टर है, उनका प्राइम मिनिस्टर का हेडक्वार्टर था हमारा संगारेड्डी, मगर यही इंदिरा जी का हेडक्वार्टर से हम संगारेड्डी से राहुल जी को साथ देने के लिए, उनका आवाज पे आवाज, उनके जो आवाज दे रहे हैं वो आवाज हम लड़ने के लिए, हम यहाँ देश की जनता के जो राहुल जी जो आवाज उठा रहे हैं, जो देश की जनता को बचाने का कोशिश कर रहे हैं, वो हिस्सा चोरी को रोकने के लिए जो राहुल जी वो लोग कोशिश कर रहे हैं पार्लियामेंट में, वो उनके आवाज पे हम उनके साथ, उनके बाद में हम लोग या इंदिरा जी हेडक्वार्टर संगारेड्डी पे हम लोग यहाँ आज जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं प्रोग्राम, बीजेपी खिलाफ, प्रधानमंत्री को खिलाफ राहुल जी नेतृत्व में हम लोग यहाँ संगारेड्डी पे आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं।